ایسی کوئی نظر ہی نہیں ہے جس کا آپ حصہ نہ ہو. I can't wait for our future. ہم ایک دوسرے کے کمپینینز بن کے. دیکھ لے صحیح. میں نے اسے ویسے ہی کہہ دیا تھا ہم زیادہ دیکھ لے نہیں آ پائیں. خوشی کی خاطر دل پہ پتھر رکھ رہی ہوں. ٹھیک لگے. مجھے یقین ہے امی حریم آپ کا دل جیت لے گی. ہے اتنی اچھی ہو. ارے کیا ہو گیا؟ ابھی بات پکی ہوئی نہیں ہے. لڑکی پسند ممی کو پتہ ہے؟ روفی کو. اور بتاؤ. مجھے بس یاد دلا دے. تھینک یو سو مچ بھائی. میرا سارا بوجھ ہلکا. بات کر لوں گا میں روفی سے. ابھی کرا ابھی نہیں. کیا چل بعد بھی کریں گے. تو میں کام کر. جی امی. بیٹا وہ ناصر کی والدہ اور بہن آئی ہیں, آ جاؤ تم ذرا ملنے. جی میں 10 منٹ میں فری ہو کے آتی ہوں. ایک مرتبہ گن لو. آپ نے گن لیا؟ ہاں پورے 50,000. ٹھیک ہے. ہاں یہ کام بھی کر لیتی ہے. جی ماشاءاللہ سے میری حریم میرے گھر کی روشنی ہے. ارے بس میں چاہتی ہوں. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل خمار کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے فائز اپنے بھائی ریان سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے اور اسے اپنی حریم کے پسندیدگی کے بارے میں بتا کر انسسٹ کرے گا کہ وہ روفی کو اپنی فیملی کے ساتھ ریان کی شادی میں انوائٹ کرے. اور پھر فائز کی خاطر ریان روفی کو انوائٹ کرے گا اور روفی اور حریم ریان کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کریں گے. ایک طرف تو حریم کے آنے سے فائز بہت خوش ہوگا اور بہانے بہانے سے حریم کے آس پاس گھومتا رہے گا اور دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے کہے گا کہ اپنے من کی اس بے ریا اور خالص دنیا سے نکال کر تمہیں اس جھوٹی اور منافق ریاکار دنیا میں کیسے لاؤں. اور دوسری طرف فائز کی امی کو حریم اور روفی کی آمد بہت ناگوار گزرے گی. ان کو فائز پر بہت غصہ آئے گا اور وہ اپنے غصے کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کرتے ہوئے کہے گی کہ میں نے اتنے پاپڑ بیل کر اتنی مشکل سے ریان کا رشتہ اونچے گھرانے میں کروایا, مگر اس فائز کو تو صرف اس زمین پر رینگتی ہوئی کیڑی ہی پسند آتے ہیں. اور فائز کی ایکسائٹمنٹ اور خوشی اس کی بہن لائبہ کی نظروں سے چھپی نہیں رہ پائے گی اور وہ اپنی ماں کو بھی فائز کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہے گی کہ فائز بھائی اس لڑکی کے بہت آگے پیچھے نہیں پڑ رہے. تو کہکشاں بیگم لائبہ کی بات سن کر ناگواری کا اظہار کرے گی. حریم فائز اور ریان کے بہت اصرار پر مہندی کے فنکشن میں آ تو گئی, لیکن لائبہ اور کہکشاں بیگم حریم کو بہت ہی حقارت کی نظروں سے دیکھے گی. تو حریم بھی بہت انکمفرٹیبل فیل کرے گی اور گھر واپسی پر کہے گی کہ کہکشاں آنٹی اور لائبہ بہت مختلف ہے, ان کی نظریں انسان کو ترازو کی طرح تولتی ہے. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل خمار کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے فائز اپنے بھائی ریان سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے اور اسے اپنی حریم کے پسندیدگی کے بارے میں بتا کر انسسٹ کرے گا کہ وہ روفی کو اپنی فیملی کے ساتھ ریان کی شادی میں انوائٹ کرے. اور پھر فائز کی خاطر ریان روفی کو انوائٹ کرے گا اور روفی اور حریم ریان کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کریں گے. ایک طرف تو حریم کے آنے سے فائز بہت خوش ہوگا اور بہانے بہانے سے حریم کے آس پاس گھومتا رہے گا اور دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے کہے گا کہ اپنے من کی اس بے ریا اور خالص دنیا سے نکال کر تمہیں اس جھوٹی اور منافق ریاکار دنیا میں کیسے لاؤں. اور دوسری طرف فائز کی امی کو حریم اور روفی کی آمد بہت ناگوار گزرے گی. ان کو فائز پر بہت غصہ آئے گا اور وہ اپنے غصے کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کرتے ہوئے کہے گی کہ میں نے اتنے پاپڑ بیل کر اتنی مشکل سے ریان کا رشتہ اونچے گھرانے میں کروایا, مگر اس فائز کو تو صرف اس زمین پر رینگتی ہوئی کیڑی ہی پسند آتے ہیں. اور فائز کی ایکسائٹمنٹ اور خوشی اس کی بہن لائبہ کی نظروں سے چھپی نہیں رہ پائے گی اور وہ اپنی ماں کو بھی فائز کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہے گی کہ فائز بھائی اس لڑکی کے بہت آگے پیچھے نہیں پڑ رہے. تو کہکشاں بیگم لائبہ کی بات سن کر ناگواری کا اظہار کرے گی. حریم فائز اور ریان کے بہت اصرار پر مہندی کے فنکشن میں آ تو گئی, لیکن لائبہ اور کہکشاں بیگم حریم کو بہت ہی حقارت کی نظروں سے دیکھے گی. تو حریم بھی بہت انکمفرٹیبل فیل کرے گی اور گھر واپسی پر کہے گی کہ کہکشاں آنٹی اور لائبہ بہت مختلف ہے, ان کی نظریں انسان کو ترازو کی طرح تولتی ہے. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل خمار کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے
फाइज अपने भाई रेयान से अपनी दिल की बात शेयर कर ताहिर से अपनी करीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और करीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो करीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से करीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को करीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जे करती हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे, तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। करीम फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी, तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कह के शाह आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपनी दिल की बात शेयर कर ताहिर से अपनी करीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और करीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो करीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से करीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को करीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जे करती हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे, तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। करीम फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी, तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कह के शाह आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपनी दिल की बात शेयर कर ताहिर से अपनी करीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और करीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो करीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से करीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को करीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जे करती हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे, तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। करीम फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी, तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कह के शाह आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपनी दिल की बात शेयर कर ताहिर से अपनी करीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे
और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को हरीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेलकर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस जमीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जे करती हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी। तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कह के शाह आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी हरीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे। और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को हरीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेलकर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस जमीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जे करती हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी। तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कह के शाह आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी हरीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे। और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को हरीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेलकर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस जमीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जे करती हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी। तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कह के शाह आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी हरीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे। और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा
کہ اپنے من کی اس بے ریا اور خالص دنیا سے نکال کر تمہیں اس جھوٹی اور منافق ریاکار دنیا میں کیسے لاؤں۔ اور دوسری طرف فائز کی امی کو حریم اور روفی کی آمد بہت ناگوار گزرے گی۔ ان کو فائز پر بہت غصہ آئے گا اور وہ اپنے غصے کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کرتے ہوئے کہے گی کہ میں نے اتنے پاپڑ بیل کر اتنی مشکل سے ریان کا رشتہ اونچے گھرانے میں کروایا، مگر اس فائز کو تو صرف اس زمین پر رینگتی ہوئی کیڑی ہی پسند آتے ہیں۔ اور فائز کی ایکسائٹمنٹ اور خوشی اس کی بہن لائبہ کی نظروں سے چھپی نہیں رہ پائے گی، اور وہ اپنی ماں کو بھی فائز کی طرف متوجہ کرتی ہوئے کہے گی کہ فائز بھائی اس لڑکی کے بہت آگے پیچھے نہیں پڑ رہے، تو کہہ کے شاہ بیگم لائبہ کی بات سن کر ناگواری کا اظہار کرے گی۔ حریم فائز اور ریان کے بہت اصرار پر مہندی کے فنکشن میں آ تو گئی، لیکن لائبہ اور کہہ کے شاہ بیگم حریم کو بہت ہی حقارت کی نظروں سے دیکھے گی، تو حریم بھی بہت انکمفرٹیبل فیل کرے گی اور گھر واپسی پر کہے گی کہ کہہ کے شاہ آنٹی اور لائبہ بہت مختلف ہے، ان کی نظریں انسان کو ترازو کی طرح تولتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل خمار کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے فائز اپنے بھائی ریان سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے اور اسے اپنی حریم کی پسندیدگی کے بارے میں بتا کر انسسٹ کرے گا کہ وہ روفی کو اپنی فیملی کے ساتھ ریان کی شادی میں انوائٹ کرے، اور پھر فائز کی خاطر ریان روفی کو انوائٹ کرے گا اور روفی اور حریم ریان کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کریں گے۔ ایک طرف تو حریم کے آنے سے فائز بہت خوش ہوگا اور بہانے بہانے سے حریم کے آس پاس گھومتا رہے گا اور دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے کہے گا کہ اپنے من کی اس بے ریا اور خالص دنیا سے نکال کر تمہیں اس جھوٹی اور منافق ریاکار دنیا میں کیسے لاؤں۔ اور دوسری طرف فائز کی امی کو حریم اور روفی کی آمد بہت ناگوار گزرے گی۔ ان کو فائز پر بہت غصہ آئے گا اور وہ اپنے غصے کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کرتے ہوئے کہے گی کہ میں نے اتنے پاپڑ بیل کر اتنی مشکل سے ریان کا رشتہ اونچے گھرانے میں کروایا، مگر اس فائز کو تو صرف اس زمین پر رینگتی ہوئی کیڑی ہی پسند آتے ہیں۔ اور فائز کی ایکسائٹمنٹ اور خوشی اس کی بہن لائبہ کی نظروں سے چھپی نہیں رہ پائے گی، اور وہ اپنی ماں کو بھی فائز کی طرف متوجہ کرتی ہوئے کہے گی کہ فائز بھائی اس لڑکی کے بہت آگے پیچھے نہیں پڑ رہے، تو کہہ کے شاہ بیگم لائبہ کی بات سن کر ناگواری کا اظہار کرے گی۔ حریم فائز اور ریان کے بہت اصرار پر مہندی کے فنکشن میں آ تو گئی، لیکن لائبہ اور کہہ کے شاہ بیگم حریم کو بہت ہی حقارت کی نظروں سے دیکھے گی، تو حریم بھی بہت انکمفرٹیبل فیل کرے گی اور گھر واپسی پر کہے گی کہ کہہ کے شاہ آنٹی اور لائبہ بہت مختلف ہے، ان کی نظریں انسان کو ترازو کی طرح تولتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل خمار کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے فائز اپنے بھائی ریان سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے اور اسے اپنی حریم کی پسندیدگی کے بارے میں بتا کر انسسٹ کرے گا کہ وہ روفی کو اپنی فیملی کے ساتھ ریان کی شادی میں انوائٹ کرے، اور پھر فائز کی خاطر ریان روفی کو انوائٹ کرے گا اور روفی اور حریم ریان کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کریں گے۔ ایک طرف تو حریم کے آنے سے فائز بہت خوش ہوگا اور بہانے بہانے سے حریم کے آس پاس گھومتا رہے گا اور دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے کہے گا کہ اپنے من کی اس بے ریا اور خالص دنیا سے نکال کر تمہیں اس جھوٹی اور منافق ریاکار دنیا میں کیسے لاؤں۔ اور دوسری طرف فائز کی امی کو حریم اور روفی کی آمد بہت ناگوار گزرے گی۔ ان کو فائز پر بہت غصہ آئے گا اور وہ اپنے غصے کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کرتے ہوئے کہے گی کہ میں نے اتنے پاپڑ بیل کر اتنی مشکل سے ریان کا رشتہ اونچے گھرانے میں کروایا، مگر اس فائز کو تو صرف اس زمین پر رینگتی ہوئی کیڑی ہی پسند آتے ہیں۔ اور فائز کی ایکسائٹمنٹ اور خوشی اس کی بہن لائبہ کی نظروں سے چھپی نہیں رہ پائے گی، اور وہ اپنی ماں کو بھی فائز کی طرف متوجہ کرتی ہوئے کہے گی کہ فائز بھائی اس لڑکی کے بہت آگے پیچھے نہیں پڑ رہے، تو کہہ کے شاہ بیگم لائبہ کی بات سن کر ناگواری کا اظہار کرے گی۔ حریم فائز اور ریان کے بہت اصرار پر مہندی کے فنکشن میں آ تو گئی، لیکن لائبہ اور کہہ کے شاہ بیگم حریم کو بہت ہی حقارت کی نظروں سے دیکھے گی، تو حریم بھی بہت انکمفرٹیبل فیل کرے گی اور گھر واپسی پر کہے گی کہ کہہ کے شاہ آنٹی اور لائبہ بہت مختلف ہے، ان کی نظریں انسان کو ترازو کی طرح تولتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل خمار کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے فائز اپنے بھائی ریان سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے اور اسے اپنی حریم کی پسندیدگی کے بارے میں بتا کر انسسٹ کرے گا کہ وہ روفی کو اپنی فیملی کے ساتھ ریان کی شادی میں انوائٹ کرے، اور پھر فائز کی خاطر ریان روفی کو انوائٹ کرے گا اور روفی اور حریم ریان کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کریں گے۔ ایک طرف تو حریم کے آنے سے فائز بہت خوش ہوگا اور بہانے بہانے سے حریم کے آس پاس گھومتا رہے گا اور دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے کہے گا کہ اپنے من کی اس بے ریا اور خالص دنیا سے نکال کر تمہیں اس جھوٹی اور منافق ریاکار دنیا میں کیسے لاؤں۔
और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को करीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेहान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जे करती हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी। तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कह के शाह आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी करीम की पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे। और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को करीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेहान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जे करते हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी। तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कह के शाह आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी करीम की पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे। और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को करीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेहान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जे करते हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी। तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कह के शाह आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी करीम की पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे। और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को करीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेहान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया,
मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगते हुए कीड़े ही पसंद आते हैं और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जे करते हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कह के शाह आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी करीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को हरीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगते हुए कीड़े ही पसंद आते हैं और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जे करते हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कह के शाह आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी करीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को हरीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगते हुए कीड़े ही पसंद आते हैं और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जे करते हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कह के शाह आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी करीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को हरीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगते हुए कीड़े ही पसंद आते हैं और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी
और वो अपनी माँ को भी फ़ाइज़ की तरफ मुतवज्जे करती हुए कहेगी कि फ़ाइज़ भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम फ़ाइज़ और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कहकशां बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी। तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कहकशां आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फ़ाइज़ अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी करीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे। और फिर फ़ाइज़ की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फ़ाइज़ बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फ़ाइज़ की अम्मी को हरीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फ़ाइज़ पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फ़ाइज़ को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फ़ाइज़ की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फ़ाइज़ की तरफ मुतवज्जे करती हुए कहेगी कि फ़ाइज़ भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम फ़ाइज़ और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी। तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कहकशां आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फ़ाइज़ अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी करीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे। और फिर फ़ाइज़ की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फ़ाइज़ बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फ़ाइज़ की अम्मी को हरीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फ़ाइज़ पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फ़ाइज़ को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फ़ाइज़ की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फ़ाइज़ की तरफ मुतवज्जे करती हुए कहेगी कि फ़ाइज़ भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम फ़ाइज़ और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी। तो हरीम भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कहकशां आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फ़ाइज़ अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी करीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे। और फिर फ़ाइज़ की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फ़ाइज़ बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फ़ाइज़ की अम्मी को हरीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फ़ाइज़ पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फ़ाइज़ को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फ़ाइज़ की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी
और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जह करते हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम, फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कहकशां बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी। तो हरीम भी बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कहकशां आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाइज अपने भाई रेयान से अपने दिल की बात शेयर करता है और इसे अपनी हरीम के पसंदीदगी के बारे में बताकर इंसिस्ट करेगा कि वो रूफी को अपनी फैमिली के साथ रेयान की शादी में इनवाइट करे। और फिर फाइज की खातिर रेयान रूफी को इनवाइट करेगा और रूफी और हरीम रेयान की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। एक तरफ तो हरीम के आने से फाइज बहुत खुश होगा और बहाने बहाने से हरीम के आसपास घूमता रहेगा और दिल ही दिल में इसे मुहातिब करके कहेगा कि अपने मन की इस बेरिया और खालिस दुनिया से निकाल कर तुम्हें इस झूठी और मुनाफिक रियाकार दुनिया में कैसे लाऊं। और दूसरी तरफ फाइज की अम्मी को हरीम और रूफी की आमद बहुत नागवार गुजरेगी। इनको फाइज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से का इजहार अपने शौहर के सामने करते हुए कहेगी कि मैंने इतने पापड़ बेल कर इतनी मुश्किल से रेयान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, मगर इस फाइज को तो सिर्फ इस ज़मीन पर रेंगती हुई कीड़ी ही पसंद आते हैं। और फाइज की एक्साइटमेंट और खुशी इसकी बहन लाइबा की नज़रों से छुपी नहीं रह पाएगी और वो अपनी माँ को भी फाइज की तरफ मुतवज्जह करते हुए कहेगी कि फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं पड़ रहे। तो कह के शाह बेगम लाइबा की बात सुनकर नागवारी का इजहार करेगी। हरीम, फाइज और रेयान के बहुत इसरार पर मेहंदी के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन लाइबा और कह के शाह बेगम हरीम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखेगी। तो हरीम भी बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी और घर वापसी पर कहेगी कि कहकशां आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ है, इनकी नज़रें इंसान को तराजू की तरह तोलती है।